Good evening, everyone. How are you? I hope all of you are doing well and all of you are safe. Friends, our today's webinar is on CAT 2020 study. In this webinar, we will see, first of all, the importance of CAT in this COVID-19 situation. Then हम कुछ syllabus भी देखेंगे CAT का और एक overview लेंगे and ये 4 to 5 months में कैसे आपका CAT का preparation होना चाहिए that we will see. Let's start with this webinar. Friends, before we begin, please note down this. In case your connection breaks down during the webinar, then hit back the webinar link to resume. You can type your questions using the question mark button given on the side panel. Your questions will be answered in the end. If possible, use headphone for better audio output. Okay. So my name is Sagar. I'm the faculty of Quant and Reasoning in Time Institute, Nasik. Let's start this webinar. CAT. The life changer I'm saying. CAT can change your life. How? That we are going to see now. See guys, what is the current scenario? You know it very well. So we can say CAT is the best return on investment in the current scenario. Because whatever you are going to invest in this exam and effectively in your MBA, that will pay you a great result. Because सब लोग कहते हैं अभी recession है या आएगा and all, right? But guys, recession जो है it will be for 1 year, maximum 2 years. जितने जल्दी से economy downwards गई है उतने जल्दी से ये upward भी तो आएगी, right? So in coming years, this boom in the economy will respect your today's hard work. That's why I'm saying CAT is the best return on investment. ये 2 साल आपको बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना है, बट MBA में इन्वेस्ट करना है मतलब ये CAT के प्रिपरेशन के लिए पहले आपको इन्वेस्ट करना है. And one interesting thing about CAT, you should know that if you are preparing for the CAT, then no separate preparation is required for other exams like that and MATSNAP, you know all this, etc. Right? Slight differences there in their syllabus, but if you're preparing for the CAT, then you can give all these exams without any hesitation. How much time is required to get 99 and above, right? So my answer will be 4 to 5 months are more than sufficient. More than sufficient. Irrespective of your background, आप कॉमर्स बैकग्राउंड हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कुछ भी मैटर नहीं करता. 4 to 5 months अगर आप डेली 6 to 8 hours पढ़ सकते हो, seriously focus study कर सकते हो, then I think 4 to 5 months are more than sufficient to get a good score in the CAT. And I'm saying good score, it means more than 90. मैजिक ऑफ CAT. ये एग्जाम में बहुत बड़ा मैजिक है. क्या? देखो, अभी मैंने 99 परसेंटाइल के बारे में बात की. गाइस सबको तो नहीं मिल सकता 99%, राइट? बट इस एग्जाम में एक ऐसी खास बात है, एक ऐसा मैजिक है कि अगर आप एकदम कम स्कोर भी लाते हो, 60 परसेंटाइल भी लाते हो, then also this CAT provides you great placements even at 60%. There are so many good colleges जो आपको CAT के 60 परसेंटाइल में भी मिल सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि 99 नहीं आया, 95 नहीं आया तो IIM नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, मेरा प्रिपरेशन मिस गया. बिल्कुल नहीं. आपको 60 परसेंटाइल में भी ऐसे कॉलेजेस मिल सकते हैं जो आपको आराम से 8 to 10 लाख का पैकेज दे सकते हैं. ओके Okay, so around 70 of top 100 B schools accepts the CAT score. इंडिया में जो भी टॉप के 100 B schools है उसमें से 70 schools जो है B schools जो है वो CAT का स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं. The huge demand for MBA graduates across MNCs and top Indian companies
ensures that excellent placements take place not only at premier B schools like IIMs, but also among the mid-level B schools. जो कि मैंने अभी भी आपको बताया, 60 परसेंटाइल पे भी बहुत बढ़िया कॉलेजेस मिल सकते हैं. सो नॉट टू वरी कि मैं मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है एंड मैं 99 नहीं लाया तो क्या होगा, मेरा ईयर खराब होगा. नो, यू विल गेट अ गुड कॉलेज. कौन से कॉलेजेस होंगे, कौन से परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, ये सारे सेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कमिंग सैटरडे. सो अभी थोड़ा पेपर पैटर्न देख लेते हैं कैट का. एक जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. कौन कौन से सेक्शन से हैं वो देख लेते हैं. ठीक है. VARC, that is verbal ability and reading comprehension. This is the first section in the CAT, जो कि होता है 60 मिनट्स के लिए. इसमें 34 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको एंड वन क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. अगर आपका वन क्वेश्चन राइट आ जाता है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. सो 34 क्वेश्चंस के हो गए टोटल. मैक्सिमम मार्क्स कितने, 102, राइट. The second section is LRDM, that is logical reasoning and data interpretation. Again, it is for 60 minutes. 32 questions हो सकते हैं इसमें. 32 questions, so per question 3 marks, so it will be of 96 marks. Third section is quant, that is quantitative aptitude, which is again for 60 minutes. 34 questions हो सकते हैं, right? One question 3 marks, 102 marks. So overall, the total paper consists of 100 questions, 180 minutes and 300 marks, right? That's it. ये 180 minutes means 3 hours का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस, राइट. ना ये जो 100 क्वेश्चंस है, इसमें से कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने चाहिए, तो कितने परसेंटाइल मिलेंगे, ये सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर में थोड़ी देर में करता हूँ. ठीक है. इसके पहले थोड़ा पेपर पैटर्न और अच्छे से समझ लेते हैं. सी, कैट में सेक्शन टाइम लिमिट होता है. यू कैन मूव बैक एंड फोर्थ विद इन द सेक्शन but can't move from section to another within the 60 minutes of the section. For example, अगर आपके स्क्रीन के ऊपर क्वांट का सेक्शन चल रहा है तो आपको पूरा 60 मिनट्स उसमें ही यूटिलाइज करना है. ऐसा नहीं कि मेरा अभी मुझे क्वांट आ नहीं रहा है तो मैं क्वांट का रिमेनिंग टाइम में LRDI में देना चाहता हूँ. यू कांट डू दैट, राइट. 60 मिनट्स आपके क्वांट के खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर आपका नेक्स्ट सेक्शन आ ही जाएगा, राइट. हाँ, आप क्वेश्चन शफल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वांट का सेक्शन चल रहा है तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यू कैन गो टू द 14th क्वेश्चन. क्वेश्चंस यू कैन move from one question to another question, but you cannot move section to another, right? Okay, so on-screen calculator is provided. CAT में calculator होता है, on-screen calculator होता है. Then also, guys, if you are planning to prepare for the CAT, whenever you will start your preparation, try to prepare the section without calculator. Yes, use the calculator where extension calculations are there, but small calculations में आप calculator मत यूज किया करो. इससे होगा क्या, अगर आप कैलकुलेटर अवॉइड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन का एक्सरसाइज है वो होता है, आपकी रीजनिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है. आपको नंबर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको कैट अच्छे से क्लियर करना है, राइट. जितना हो सकता है जब आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हो कैलकुलेटर अवॉइड किया करो. एग्जाम में आराम से यूज करो. नोबडी इज गोइंग टू टेल यू एनीथिंग इन द एग्जाम. एग्जाम में इट इज अलाउड, बट आपकी प्रिपरेशन अच्छा हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना हो सके कैलकुलेटर अवॉइड किया करो. ठीक है. MCQs, राइट. देखो कैट के जो क्वेश्चंस है these are of two types, MCQs and non MCQs. MCQs is multiple choice questions. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो 3 मार्क्स मिलते हैं आपको करेक्ट क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए. एंड अगर आपका आंसर रॉन्ग आता है तो आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट किया जाएगा. 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी, राइट. एंड जो नॉन एमसीक्यूज है उसमें करेक्ट आंसर के आपको मिलते हैं 3 मार्क्स, बट गुड थिंग इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर नॉन एमसीक्यूज. नॉन एमसीक्यूज होते क्या है, उसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे. एमसीक्यूज में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, नॉन एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे. आपको एक छोटा सा बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन के बाद, उसमें आपको आपका आंसर टाइप. फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपने एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर आया कुछ भी आया 14 आया, राइट. तो आपको उस बॉक्स में 14 टाइप करना है, दैट इज 14. ठीक है. और अगर आपको रॉन्ग आता है तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर नॉन एमसीक्यू.
This was about the paper. No fixed distribution of marks for chapters within a section. देखो ऐसा कहीं भी नहीं दिया है कि पर्टिकुलर चैप्टर इज फॉर पर्टिकुलर मार्क्स, राइट? ऐसा नहीं है। कोई भी टॉपिक कितने भी मार्क्स के लिए आ सकता है और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। बहुत बार सेशन होने के बाद जब हम क्लासरूम में लेक्चर्स लेते हैं तब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आज हमने क्या लिया, रेशियो प्रोपोर्शन लिया, तो रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो कितने मार्क्स के लिए आएगा सर एग्जाम में? देखो जो भी आंसर सब उसका हम करते हैं तो वो पास्ट 3 to 4 एक्सपीरियंस ईयर्स के एक्सपीरियंस, अगर मतलब कैट के पेपर्स देखें तो पास्ट 3-4 ईयर्स में अगर सिंपल इक्वेशन 2-3-4-3-2-3 ऐसे चल रहा है तो हम बोलेंगे 2-3 मार्क्स के लिए आ सकता है। बट साइमल्टेनियसली हम आपको ये भी बोलते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन इन कैट, बिकॉज जो टॉपिक 2 मार्क्स के लिए सालों से पूछा जा रहा है हो सकता है वो इस बार 10 मार्क्स के लिए पूछा जाए, या हो सकता है उस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन आए ही नहीं, राइट? सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स नहीं है, बट फिर भी हम आपको गाइड करेंगे कौन से चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना मार्क्स देना है, ठीक है? एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, मैंने अभी अभी बोला है। आपको ऐसे ही समझ के पढ़ना है कि ये पूरा तो पूरा पेपर इस पर्टिकुलर चैप्टर पे ना आ जाए, वर्स्ट केस पे मैं बात कर रहा हूँ। आपको यही सोच के आपका प्रिपरेशन जो है वो आगे बढ़ाना है, बट हर किसी को ये पॉसिबल नहीं होता, राइट? हर कोई हर एवरी चैप्टर जो है, एवरी सेक्शन जो है वो नहीं परफेक्ट कर सकता। एंड ये मैंने अभी आपको बोला कि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मे कम फ्रॉम द neglected topic. Now what I'm going to tell you, selective preparation strategy can be risky, then also you should take the risk, right? अगर आप चाहते हो ना कि नहीं मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है बहुत लोगों का, राइट, नहीं करना है, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये लाइफ में तो मैं उसको टच ही नहीं करने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया होता है ऐसा कि ये टॉपिक में किसी भी हालत में टच नहीं करूँ, राइट? यस यू कैन डू दैट, बट साइमल्टेनियसली आपको ये याद रखना है कि अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक या चलो 2 टॉपिक आप नहीं करना चाहते, राइट, आपको रिमेनिंग टॉपिक्स में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तो आप वो बैलेंस कर सकते, राइट? नहीं तो आपने ये 2 टॉपिक्स भी छोड़ दिए और बाकी के टॉपिक्स भी ऊपर ऊपर से पढ़े, तो फिर फायदा। अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक नहीं करना है, सिलेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी करनी है, तो बाकी के जो टॉपिक्स वो आपको परफेक्ट करने हैं, ठीक है? तो रिस्क लेना है तो ये सारी चीजें दिमाग में रखिए, आपको रिस्क लेना है, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये परसेंटाइल एग्जैक्टली होते क्या है एंड व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन दिस परसेंटाइल एंड परसेंटेज, एंड ऊपर से कितने मार्क्स चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए तो 95 परसेंटाइल मिलेंगे या 99 मिलेंगे, राइट? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं अभी भी आपको कर देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे होते हैं वो देखते हैं। सी गाइस, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। cat percentile is equal to 1 minus your rank in cat upon total number of candidates taking cat into 100, okay? तो ये रैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप परसेंटाइल कैलकुलेट करते हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा कि परसेंटाइल एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे होता है। If the total number of candidates who will be appearing for CAT exam is 1 lakh, let's assume it's 1 lakh, 1 lakh लोग CAT देने वाले हैं या दिया सपोज, ठीक है? And you score a rank of 3500, ठीक है? 1 लाख लोगों में से आपका रैंक जो है वो it's 3500, then your CAT percentile will be calculated as given। और अभी मैं जस्ट वैल्यूज पुट करता हूँ आपके ये ऊपर का जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें। See, your CAT percentile will be 1 minus your rank is nothing but 3500, total number of candidates is 1 lakh into 100, right? इसमें आप वैल्यूज डाल दो आपको परसेंटाइल मिल जाएंगे। किया कैलकुलेट किसे? ओके, लेट्स सी, ये आता है 96.5%। अगर 1 लाख में से आपका रैंक जो है वो 3500 आता है तो आपके परसेंटाइल बनते हैं 96.5%, ठीक है ना? ये परसेंटाइल एंड परसेंटेज का थोड़ा कनेक्शन है, कैसे? सी
This 96.5 percentile means that 96.5% of the students writing the CAT exam shall have the CAT score below. मतलब आपने टोटल जितने भी लोग थे कैट जिन्होंने दिया उसमें से 96.5% लोगों को पीछे छोड़ा है, राइट। जो भी आपके परसेंटाइल होंगे उतना आपको okay. This 96.5 percentile means that 96.5% of the students writing the CAT exam shall have the CAT score below. Okay. Now, no candidate can score an absolute 100 percentile in CAT exam because CAT percentile indicates what percent of the students you are ahead of. For example, अगर 1 लाख स्टूडेंट्स कैट दे रहे हैं तो आप पूरे के पूरे 1 लाख को तो पीछे नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि आप भी उसमें से एक हो, 1 लाख में से एक हो, राइट। तो 100 परसेंटाइल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो आई होप आपका परसेंटाइल एंड परसेंटेज का जो कनेक्शन है वो अभी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। मैं अभी आपको कैट में ये परसेंटाइल और बाकी के एग्जाम्स के जो परसेंटाइल है इनका थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूँ, तो दैट आपको कैट में या कैट स्कोर का इंपॉर्टेंस क्या है कंपेयर टू अदर एग्जाम्स वो पता चलता है। हम ये सारी एग्जाम्स की जगह पे कोई भी दो एग्जाम पिक कर लेते हैं, कैट एंड लेट्स सी सीटी, ओके। कैट एंड सीटी का कंपेयर करते हैं। अगर अभी आप एक्सीलेंट स्कोर का कॉलम देखो, then you can see 98 percentile in CAT is considered as an excellent score, excellent, right? CET 99.95 percentile is considered as excellent. To talk about very good score, then 95 percentile in CAT is still very good score, but in CET 99.85 percentile is considered as a very good score. 85 percentile in CAT is considered as a good score. But in CET, if you want good score, then 98 percentile. Okay. Average. Look at this. CAT 75 percentile is still considered as an average score in the CAT. But in other exams, look at this. 90 and above. Average score माना जाता है. CET देख लो 97 percentile is the average. कोई भी ला सकता है, right? So CAT के percentile जो है वो बहुत पावर जो है वो बहुत ठीक है। अभी मैंने आपको परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बता दिया, फिर अदर एग्जाम्स के साथ परसेंटाइल कंपैरिजन किए, परसेंटाइल का कंपैरिजन हो गया। अभी मार्क्स एंड परसेंटाइल का क्या कनेक्शन है वो देख लेते हैं। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन कि कितने परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए, तो वो एक मैं थोड़ा सा रफ एस्टिमेट आपके सामने रख रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स पे मत जाना, कि आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कि इतने परसेंटाइल आए तो इतने मार्क्स आपको लाने, ठीक है। फर्स्ट रो अगर आप देखते हो, मैं नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा दूर रख रहा हूँ, अदरवाइज आपके दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो मैं सिर्फ करेक्ट अटेम्प्ट्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। ऐसा समझ के चलते हैं कि आपने जो भी अटेम्प्ट किया वो करेक्ट है, थोड़ा ही किया बट करेक्ट किया, ठीक है। तो 23 अगर आपके करेक्ट अटेम्प्ट्स होते हैं तो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मींस 23 into 3 69 आपके मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, अगर आप 23 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आप सिर्फ 23 अटेम्प्ट करते हो, करेक्ट अटेम्प्ट करते हो, तो मार्क्स दिखेंगे 69, परसेंटाइल दिखेंगे 71। तो आगे जाता हूं मैं 31 अटेम्प्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपके अटेम्प्ट्स जो है करेक्ट अटेम्प्ट जो है वो 31 है, तो आपके मार्क्स होंगे 93 एंड परसेंटाइल डायरेक्टली जंप हो चुका है 85। और थोड़ा आगे जाओ, अगर आप 48 मींस अराउंड हाफ ऑफ द पेपर आप अटेम्प्ट कर लेते करेक्टली, 48 मैं सिर्फ हाफ पेपर के बारे में 48 क्वेश्चन। लुक एट दिस, आपका स्कोर बनता है, मार्क्स आपके बनते हैं 144 एंड आपके परसेंटाइल बनते हैं 98 परसेंटाइल। सो लेस देन हाफ पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, करेक्टली अटेम्प्ट करने के बाद आप 98 तक आ गए, एंड जस्ट 4 मार्क्स या 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चंस अगर आप ज्यादा लाते हो तो 52, अगेन इट इज स्टिल हाफ ऑफ द पेपर, राइट, अराउंड हाफ ऑफ द पेपर। तो आपके मार्क्स आपको दिखेंगे 156 एंड आप आ चुके हो 99 परसेंटाइल। So, do you still believe that to score 99 percentile is difficult? नहीं ना, right? 52 questions, ये एक रफ एस्टिमेट, ठीक है। 52
करेक्ट आइटम्स आने के बाद आप 99% तक जा सकते। यस गाइस, 99 के आगे अगर आपको जाना है, 99% के आगे, तो यस वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक एग्जांपल मैंने रखा है यहाँ पे, देखो 74 अगर आपके करंट आइटम्स होते हैं तो आप 90 मतलब 52 टू 74 का जर्नी देखो, और इधर परसेंटाइल में स्लाइड डिफरेंस, मतलब 0.9 का डिफरेंस। 99 के अगर आपको जाना है तो आपको करेक्ट अटेम्प्ट्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है, राइट। बट 99 तक मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी डिफिकल्ट है। 52 क्वेश्चंस तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ मार्क्स एंड परसेंट, ठीक है। Now, एक क्वांट का छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। सिंपल इक्वेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो 3 चैप्टर्स है गाइस, सिंपल इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि क्वांट के लिए, बट अगर आप इन तीनों में एक्सपर्ट बन गए तो आप डीआई में भी ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट बन गए। तो डीआई में ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन एंड सिंपल इक्वेशन। अगर आपको परसेंटेजेस या स्पीड मैथ्स के बारे में कुछ वीडियोस देखने हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, टाइम इंस्टीट्यूट नासिक। आप उस पे जाके ये बेसिक्स वहां पे क्लियर कर सकते हो, और भी बहुत सारे वीडियोस वहां पे आने वाले हैं, ठीक है। टाइम इंस्टीट्यूट नासिक, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर है। आगे के चैप्टर्स अगर आप देखते हो, इट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, averages, mixtures and allegations, numbers, number system, geometry, mensuration। अभी थोड़ा हायर मैथ्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका फेवरेट, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चंस, स्पेशल इक्वेशंस। स्पेशल इक्वेशन पता है, किसी को पता है क्या स्पेशल इक्वेशंस क्या होता है? एक्चुअली जो आप सिंपल इक्वेशंस में देखते हो, सिंपल इक्वेशंस में हम ही आपको बताते हैं कि इफ देयर आर टू वेरिएबल्स देन यू नीड टू इक्वेशंस, इफ देयर आर थ्री वेरिएबल्स देन यू नीड थ्री इक्वेशंस टू सॉल्व, राइट। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, मतलब कभी-कभी होता है कि थ्री वेरिएबल्स टू इक्वेशंस का हेल्प लेके भी काम चल जाता है, राइट। तो ऐसे जो एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको स्पेशल इक्वेशंस ये टॉपिक में देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सब जगह पे आपको स्क्वायर स्क्वायर दिखेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी है। सिंपल इक्वेशन में आपको एक्स एंड वाई दिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस, लेस देन, ग्रेटर देन एंड ऑल इक्वल टू, राइट। सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, इंडाइसेस एंड सोर्स, एंड लास्ट में आता है बहुत छोटा सा चैप्टर लॉगरिथम्स, राइट। तो ये एक ओवरव्यू था क्वांट के सिलेबस का। जल्दी से मैं आपको एलआर का भी बता देता हूँ, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, इसको हम पजल्स भी बोलते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होता है, सॉल्व करने के लिए बहुत मजा आता है, राइट। क्वांट बेस्ड रीजनिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इट। अगर मैं बात करूं लास्ट 2 इयर्स से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है क्वांट बेस्ड रीजनिंग। क्वांट बेस्ड रीजनिंग गाइस, आज के जो क्वेश्चंस है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स का फीडबैक था लास्ट 2 इयर्स में, कि पता ही नहीं चलता कि ये जो क्वेश्चन है वो एलआर का है या डीआई का, राइट। तो सब जगह पे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्मेट में एलआर के क्वेश्चंस पूछने का एक स्टाइल बन गया है, क्या। तो ये क्वांट बेस्ड रीजनिंग पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं हमेशा। Venn diagrams, deductions, roots and networks, blocks, logical connectives, cubes and decision making। ये ओवरव्यू था आपके लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस का। डीआईडीएस का भी देख लेते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। टेबल्स, पता होगा आपको टेबल्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, केस स्लेट्स, games and tournaments, again very interesting topic, games and tournaments, data sufficiency, networks, 3D and triangle diagrams and reasoning based, right। ये थे आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स, ओके। डेटा सफिशिएंसी के एज वेल। अगर मैं बात करूं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें तो बहुत वेरियस टॉपिक्स हैं, मैं वन बाय वन बताते जाता हूं आपको। फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, verbal reasoning, sentence completion, sentence correction, grammar, reading comprehension, jumbled paragraph, para completion, para summary, different usage of same word, and so many topics are there in BRC। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको पता होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, और कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको आ सकता है, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
सोशियोलॉजी, कोई भी टॉपिक पे आपको ये पैसेजेस आ सकते हैं, तो आपको रीडिंग जो है वो बहुत बढ़ानी है, ठीक है। अगर आपको ये सेक्शन में ज्यादा मार्क्स लाना, बात करते हैं हाउ टू स्टडी, ठीक है। अभी मैं वन बाय वन पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ गाइस। ट्राई करना कि ये आपके प्रिपरेशन प्लान में जरूर हो, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, you must make and follow a timetable for preparation apart from the classroom online lectures. Now I know अभी जो भी वेबिनार्स देख रहे हैं उसमें से कुछ ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट। सी, आप हमेशा याद रखो क्लासरूम या ऑनलाइन लेक्चर्स को आपके स्टडी आवर्स में कैलकुलेट मत करो कि मैंने 2 आवर्स का क्लासरूम या ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया मतलब मैंने 2 घंटे पढ़ा। यस, आपने जरूर कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस किया है, बट उसके अलावा आपको मिनिमम 6 आवर्स को भी टारगेट ये सब करोगे। मेरा टारगेट है आपको 99 तक लेके जाना, राइट। तो 6 आवर्स अगर आप पढ़ते हो अपार्ट फ्रॉम दी ऑनलाइन लेक्चर्स, देन इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। एंड सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है गाइस, उसको फॉलो भी करना है। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो है नहीं, कुछ दिन बनाया और बाद में इग्नोर किया। सिर्फ ज्यादा दिन नहीं, आपको सालों साल थोड़ी ना स्टडी करना है, राइट। एक 4 to 5 मंथ्स की बात है, यहाँ हार्डवर्क करोगे तो उसका रिजल्ट तो पता ही है आपको, पैकेजेस तो पता ही है ना, आई एम ए का 24.4 lakhs एंड ऑल, राइट। तो अगर आपको वो चाहिए तो आपको ये सिर्फ 4 to 5 मंथ्स बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है। अभी मैं टाइम टेबल में ज्यादा स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ कि डेली आपको 2 आवर्स कौन पढ़ना है, 2 आवर्स एलआर पढ़ना है, 2 आवर्स इंग्लिश पढ़ना है, ऐसा मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि हर एक का कैपेसिटी अलग होता है। किसी का क्वांट अच्छा होता है तो क्वांट में कम टाइम दे सकता है, एलआर अच्छा नहीं होता तो एलआर में ज्यादा टाइम दे सकता है। आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप आपके हिसाब से करो, ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल। देन डू नॉट मिस एनी लेक्चर। जो भी आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो या करने वाले हो, राइट, आप एक भी लेक्चर मिस करो, बिकॉज एक भी लेक्चर अगर आप मिस करते हो तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आएगी? एक तो पहली बात तो आपको घर पे वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जो आप उस पर्टिकुलर 2 आवर्स में समझ सकते थे, वो अभी आपको घर पे 4 आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे वही समझने के लिए, खुद से होके समझने के लिए, राइट। देन अगर आप वो पर्टिकुलर टॉपिक मिस कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आगे के जो टॉपिक्स है उसके ऊपर डिपेंड होंगे, तो आगे के भी समझ में नहीं आएंगे, पूरा जो लिंक है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो कभी भी कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। और अभी तो आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स के फैसिलिटी, आप पर्टिकुलर स्लॉट मिस करते हो तो आप बाद में भी देख सकते हो। आफ्टरनून का सेशन मिस हो गया तो आपको रात को भी देख सकते हो, बट देखो ऐसा नहीं कि अभी मेरा छोड़ दिया, मैंने नहीं करना मुझे ये, अभी डायरेक्टली आगे जाऊंगा, आगे का टॉपिक अटेंड करूंगा, ऐसा मत करो। एवरी लेक्चर एंड एवरी टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक थ्रू द क्वेश्चंस। देखो कैट में आपको क्वेश्चन को समझना है एंड यू शुड थिंक थ्रू द क्वेश्चन। और ऐसा अगर आप करते हो तो यू विल मेक योर ओन शॉर्टकट्स। whenever you will practice, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही शॉर्टकट्स आप खुद के शॉर्टकट से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा तो बहुत बढ़िया होता है, राइट। शॉर्टकट्स कहाँ से आते हैं? कोई इंसान ही होता है ना जो आपको कोई पर्टिकुलर शॉर्टकट बना के रेडीमेड देता है, राइट। कैसे बनाता होगा शॉर्टकट? आपको अगर कोई फैकल्टी शॉर्टकट बता रहा है, कैसे बता रहा है? प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चंस पर्टिकुलर टाइप के जब आप सॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में जो अननेसेसरी स्टेप्स जो है वो इलिमिनेट होती रहती है। आज सॉल्व किया तो 10 स्टेप्स लगी, कल सॉल्व किया तो 9 स्टेप्स लगी, 10 दिन के बाद सॉल्व किया तो 4 स्टेप्स में हो गया, और कुछ दिन में बात किया तो 2 स्टेप में हो गया। फिर आपको रियलाइज होता है ये 10 स्टेप्स तो कुछ काम की नहीं थी, ये तो 2 स्टेप्स का काम। बट ये सब कुछ होगा प्रैक्टिस से। सी, शॉर्टकट, ये वर्ड को ठीक से आपको समझना है। हर क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट नहीं होता। खास करके कैट में तो अगर आप देखते हो विदाउट कंसेप्ट नॉलेज आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एवरी टाइम पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, टाइप ऑफ द क्वेश्चन सब चेंज होता है। तो आपको आपका प्रिपरेशन ऐसे आगे बढ़ाना है कि आपके खुद के शॉर्टकट जो है वो आपको बढ़िया सा स्कोर है। शॉर्टकट इज नथिंग बट द एलिमिनेशन ऑफ स्टेप्स, बाकी कुछ होता नहीं शॉर्टकट, ओके।
देन डोंट यूज टू मेनी डाइवर्स रिसोर्सेज। इस शॉर्टकट का नाम लेके बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे या कहीं दूसरी रिसोर्सेज का यूज करके आपको अट्रैक्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ऑल राइट गाइस। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो आप उससे भी बढ़िया सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये जितने डाइवर्स रिसोर्सेस आप यूज करोगे उतना आपके दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा। आप ये टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हो, वो भी लगा रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, उससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन। आप कोई भी एक, जैसे कि हमारे टाइम का अगर आप देखते हो, आपको कोई भी दूसरा स्टडी मटेरियल बाहर से यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करूं आपके क्लासरूम सेशंस की, वहां पे आपको हैंडआउट्स दिए जाते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, राइट। उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाता है। फिर आपको एसएम बुक्स मिलते हैं, राइट। एसएम बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट लेवल के एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, राइट। फिर वो भी होने के बाद अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो आपको सेक्शनल टेस्ट दिख जाएंगे। हर क्वेश्चन का आंसर आपको हम प्रोवाइड करते हैं, इवन सेक्शनल टेस्ट का हो, एमकैट का हो, या आपके एसएम बुक्स का हो, जो स्टडी मटेरियल आपको बुक के फॉर्म में दिया है उसका। बहुत सारे लोगों को अगर पता नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन का बुक भी मिलता है गाइस, राइट। एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो इतनी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होती है, तो आपको कोई दूसरा कुछ यूज करने की जरूरत ही नहीं। आप आराम से कैट में बहुत बढ़िया फंटास्टिक स्कोर ला सकते हो ये स्टडी मटेरियल यूज करके। देन स्टडी मैथमेटिक्स इन अ डिफरेंट वे। अभी जो मैंने टॉपिक्स के नाम बताया आपको, क्वांट के, मैथ्स के, राइट, ये सब आपको फैमिलियर तो लगे होंगे। सिंपल इक्वेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सुना है कभी ना कभी। ऐसा आप में से कोई नहीं होगा जिसने ये टॉपिक्स के नाम कभी नहीं, लॉगरिथम्स एंड ऑल देखा है, राइट। तो अगर मैं बात करूं ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस है, तो क्या इसका मतलब ये है क्या 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट कैट क्लियर कर लेगा? नहीं, राइट। सी, टॉपिक्स वही है, सिर्फ आपको वही टॉपिक्स को अभी दूसरे तरीके से पढ़ना, ठीक है। दूसरे तरीके से मीन्स व्हाट, 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेगा स्टेप बाय स्टेप, वो स्टेप्स एलिमेंट नहीं कर सकता, बट आपको यहाँ पे कैट में कोई स्टेप्स के मार्क्स नहीं देने। तो आपका प्रिपरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपने स्टेप्स नहीं लगानी है, अननेसेसरी स्टेप्स अवॉइड करने का प्रैक्टिस आपको डे वन से होना चाहिए। मैं बहुत सारी नोटबुक्स देखता हूँ स्टूडेंट्स के, जब हम बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो बोर्ड पे भले ही हमने 4 स्टेप्स में वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, बट नोटबुक में उन्होंने 10 to 12 स्टेप्स में वो क्वेश्चन सॉल्व किया होता है। एंड व्हेन आई आस्क टू स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों किया, तो वो बोलते हैं कि अगर हम घर पे जाएंगे तो बाद में कुछ दिनों के बाद जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या लिखा है, इसलिए मैंने ये पूरा डिटेल में लिखा। पहली बात तो कुछ दिनों के बाद पढ़ना एंड ऑल ये नहीं होना चाहिए, गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर कोई टॉपिक अगर आज आपने पढ़ लिया, उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और 1 महीना देखते ही नहीं, आपका पूरा हार्ड वर्क वेस्ट जाएगा। आपको हर सेक्शन के, हर टॉपिक के कंटिन्यूअस टच में रहना, कंटिन्यूअस टच में। जो ये करेगा उसका स्कोर आराम से 99 तक जा सकता है, क्योंकि आप अगेन एंड अगेन रिवीजन करना ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि 1 महीने के बाद वापस जितना भी लिया है पढ़ा था वो मई में पढ़ा था, वो चलो अभी जून में एक बार वापस रिवाइज करते हैं। तो जून का कब पढ़ोगे भाई, राइट। सो आपको कंटिन्यूस टच, रोज किसी ना किसी बहाने से हर टॉपिक का एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो, राइट। सो इससे आपका अननेसेसरी टाइम जो वेस्ट होता है बड़ी बड़ी रिविजन्स करने में, रिवीजन करते वक्त अगेन आपको बेसिक से शुरू करना पड़ता है कि क्या था याद ही नहीं आ रहा है, क्लास में क्या सीखा था, क्या था वो अभी याद, तब तो समझा था बट अभी नहीं याद आ। ये मत होने दो गाइस। जो भी आज आप पढ़ रहे हो वो हमेशा पढ़ते रहो। मैंने अगेन आपको बोला है, आपको जिंदगी भर नहीं पढ़ना है, आपको 4 to 5 मंथ्स ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो करनी है। आपका रिवीजन के ऊपर का टाइम वेस्ट ना जाए, रिवीजन होनी चाहिए, बट एक शॉर्ट रिवीजन में भी आपके सारे टॉपिक जो है वो रिवाइज होने चाहिए, इस हिसाब से आपसे, ठीक है। कंटिन्यूअस टच में होने चाहिए हर टॉपिक की, डेली प्रैक्टिस ऑफ ईच सेक्शन इज मस्ट, अभी इसके बारे में, ठीक है ना। अभी बात करते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन।
क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन सॉल्विंग द क्वेश्चन, बिकॉज आप कैट में कौन सा क्वेश्चन पिक कर रहे हो सॉल्व करने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलती से डिफिकल्ट क्वेश्चन हाथ में लग गए, पेपर खराब हो जाएगा। आपका पूरा जो एफर्ट्स आपने लिया है, आपने हार्ड वर्क जो भी किया है, वो बेस्ट जा सकता है। आपको किसी भी हालत में डिफिकल्ट क्वेश्चन से दूर रहना है, बहुत दूर रहना है, बहुत दूर रहना है। अभी आप पूछोगे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा एंड इजी क्वेश्चन कौन सा, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? ये आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है उसके लिए सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया है वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है, एस्टिमेट लगा सकता है कि ये क्वेश्चन मेरा 30 सेकंड्स में होगा और ये क्वेश्चन मेरा 3 मिनट्स में होगा। तो 3 मिनट्स वाले क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, 30 सेकंड्स वाले क्वेश्चन को जल्दी करते हैं। सी गाइस, अगर आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हुआ है तो ये रिकॉग्नाइज करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। क्वेश्चन को देखते ही आप बता सकते हो इजी कौन सा एंड डिफिकल्ट कौन सा। ये इजी क्वेश्चन, ये जो वर्ड है ना, इसके बारे में मैं 2 मिनट के बाद आपको डिटेल में थोड़ा बात करूँ, ठीक है? एट दिस स्टेज यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कट ऑफ की ये कॉलेज में क्या कट ऑफ था, वो कॉलेज में क्या था, और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम हैं, हम सब बताएंगे आपको कि आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपका मतलब आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज के लिए आपने अप्लाई करना चाहिए। हम सब सेशंस आपके लिए अरेंज करें। फिलहाल आपको एक पर्टिकुलर परसेंटाइल आके दिखाना है, राइट? तो कट ऑफ्स के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो। स्पेशलाइजेशन के बारे में अभी कुछ स्पेशल मुझे क्या कौन सा स्ट्रीम लूं, नो। अभी आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड एलआरटी है, इसके ऊपर फोकस करना है। आपका वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लेते हैं। कट ऑफ्स एंड ऑल एडमिशन प्रोसेस जो भी है उसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन, इसके ऊपर जल्द ही हम कुछ ना कुछ वेबिनार्स या ऑनलाइन सेशंस जो है वो अरेंज करें, ठीक है? कीप मॉडिफाइंग योर प्रिपरेशन प्लान बेस्ड ऑन योर स्किल इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं कि आज आपने जो प्लान बनाया कि आज आपने डिसाइड किया कि मैं ये 2 आवर्स कॉन्ट को देने वाला हूँ, 2 आवर्स इंग्लिश को, तो पूरा कैट होने तक वही प्लान एज इट इज रखो। नो, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो जरूर आएगा। जैसे जैसे आप आपके हार्डवर्क को आगे बढ़ाते हो, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो आपके इसमें जरूर आएगा। तो आप उस हिसाब से थोड़ा बैलेंस करो कि अभी मेरा एलआरडीआई अच्छा खासा हो गया है, अभी मैं इंग्लिश के ऊपर फोकस करता हूँ। तो जैसे जैसे आपके स्किल इंप्रूव होते जाएंगे, आपका प्रिपरेशन प्लान भी आपको थोड़ा सा मॉडिफाई जरूर करना है। एकदम वही वही प्लान को स्टिक मत करो, कीप डूइंग सम चेंजेस इन दैट, ठीक है? यू जस्ट कांट अवॉइड द कंसेप्ट। अगर आपको इजी क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन के बीच में का डिफरेंस रिकॉग्नाइज करना है तो आपको कंसेप्ट पढ़ना है, राइट? वो कौन पढ़ाए? हम, राइट? टाइम में हम पूरा स्टडी प्लान जो है वो इस तरीके से बनाते हैं कि आपको उस टॉपिक के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको पूरा बेसिक्स के साथ हम टीच करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कैट लेवल का क्वेश्चन ला दिया बोर्ड पे और सॉल्व कर दिया। हम जो भी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं क्लासरूम में, आपका बेसिक्स क्लियर करना इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। देन हम कैट लेवल के क्वेश्चंस पे जाते हैं, ठीक है? तो आपकी कंसेप्ट क्लियर करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमकैट्स, राइट? अभी भी शुरू हुई है। एमकैट्स का इंपॉर्टेंस क्या है गाइस? लेट्स स्टार्ट। Face MCATs minimum 20 times before actual, तो मिनिमम 20 टाइम्स तो भी वो MCAT जो है वो फेस करना है, ठीक है ना? MCAT का स्ट्रैटेजी, शॉर्ट स्ट्रैटेजी में आपको बता, टेक टेस्ट, एनालाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एनालाइज द टेस्ट। बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं, स्कोर देखते हो गया, चलो नेक्स्ट MCAT देते हैं। नो, एनालाइज कौन करेगा, राइट? जब तक आप कोई टेस्ट एनालाइज नहीं करते तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि आपका कहाँ रॉन्ग हुआ, कहाँ राइट आया, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए था और आपने कितना दिया, कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, ये सब आपको एनालिसिस का स्टेप जो है वो बताएगा। आइडेंटिफाई द एरियाज इंप्रूवमेंट, डेवलप योर स्ट्रेटजी एंड अगेन टेक टेस्ट। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको ये छोड़ना नहीं है। मैंने 20 टाइम्स ये मिनिमम बोला, मिनिमम 20 टाइम्स आपको एक्चुअल कैट के पहले एमकैट्स को फेस करना, ठीक है? Find the reasons for the errors and try to eliminate them. One, improve your performance in prepared topics.
अभी जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है या जो कोर्स ज्वाइन करने वाले होंगे वो लोग भी एमकैट्स के, जरूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका क्लासरूम में हो ही चुका है, आपको जितना आता है धीरे धीरे आपके प्रिपेयर टॉपिक की लिस्ट तो बढ़ती जाएगी, क्लासरूम में होते जाएंगे, ऑनलाइन सेशंस होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके सिर्फ मान लो आपके सिर्फ फोर टॉपिक्स हुए, तो ऐसा नहीं कि एमकैट के लिए पूरा सिलेबस प्रिपेयर होना ही चाहिए। आपने फोर टॉपिक्स सीखे हैं क्लासरूम में ऑनलाइन सेशंस में, तो उस फोर टॉपिक्स के क्वेश्चन ढूंढो एमकैट्स में, वो सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली प्रिपेयर टॉपिक्स में बढ़ेगा, बिकॉज साइमल्टेनियसली आप ऑनलाइन सेशंस भी अटेंड कर रहे हो, आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, और आपका परफॉर्मेंस जो है वो प्रिपेयर टॉपिक्स में वो भी इंप्रूव आपको करना चाहिए। एक्सपीरियंस द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सी एमकैट से आपको बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिर्फ 50-60 क्वेश्चंस पर्टिकुलर टॉपिक के सॉल्व करके काम नहीं बनता, राइट। एवरी एमकैट में आपको एक नया कुछ तो देखने को मिलेगा कि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, राइट, ऐसा भी आ सकता है। तो एमकैट में ये सारी वैरायटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चंस की एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। एमकैट अगेन आपको सिखाता है हाउ टू बिल्ड स्टैमिना टू सिट फॉर 3 आवर्स। आपको ये स्टैमिना बिल्ड करना है, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो एटमॉस्फेयर की, टेस्ट मॉड्यूल की, 3 आवर्स तक स्क्रीन के सामने बैठने की, नेक्स्ट कैसे जाना है, प्रीवियस कैसे जाना है, आंसर सबमिट कैसे करना है, मार्क फॉर रिव्यू कैसे करना है, कैसे कलर स्कीम होती है क्वेश्चंस की, कैसे शफल किया जाता है, कैसे सबमिट किया जाता है आंसर को, इस सारी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए और वो एनकैट से मिलती है, ठीक है। All India rankings will tell you what kind of hard work others do. Now, many students are asking right now also, many students are asking that मेरा तो एमकैट अभी फर्स्ट एमकैट हुआ तो उसमें सिर्फ एलआर का मेरा एक ही क्वेश्चन हो पाया, एलआर का एक ही सेट हो पाया, क्वांट का 2 ही हो पाया, डीआई का एक भी नहीं हुआ। यस गाइस, यू आर नॉट द अलोन, यू आर नॉट द अलोन, आप अकेले नहीं हो कि जिनका सिर्फ एक क्वेश्चन हो पाया कैट एलआर का, जिनका सिर्फ 2 क्वेश्चन हो पाए क्वांट के, आप अकेले नहीं हो, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस इज जस्ट स्टार्ट, राइट। डोंट एक्सपेक्ट कि पहली एमकैट में आपको 99% आ जाए, इज इट पॉसिबल? नहीं। सो डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को डैमेज कर नहीं करना है, क्योंकि साइकोलॉजी को डैमेज नहीं करना है। अभी ये भी सोचो, आपके नीचे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपसे भी कम मार्क्स लाने वाले भी बहुत स्टूडेंट हैं, ये देखो, राइट। सो ये स्टेज के ऊपर आपको एमकैट में आने वाले स्कोर के बारे में टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बट एनालिसिस के ऊपर फोकस। मेक श्योर कि प्रीवियस एमकैट में जो आपने मिस्टेक की थी वो आपकी नेक्स्ट एमकैट में किसी भी हालत में, नेक्स्ट एमकैट में कुछ और मिस्टेक्स होगी जो कि आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी अगली एमकैट, एंड ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, एवरी टाइम यू विल डू न्यू मिस्टेक्स। मेक श्योर मिस्टेक्स, ओल्ड मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक होती है होगी, वो न्यू होनी चाहिए और उसको तुरंत आपको रेक्टिफाई करना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो स्टूडेंट्स अभी पूछ रहे कि मेरा सिर्फ 30% आया है, नो प्रॉब्लम, यही स्टूडेंट्स है जो कैट के बाद आते हैं 99% आए सर मुझे यही कहने वाले, जो भी होते हैं उनका पहले स्कोर ऐसे ही आता है, डोंट वरी, 30% को 99 तक आप आराम से जा सकते हो, डोंट वरी, ये शुरुआत है, अभी तक तो आपने टॉपिक सीखेगा है सर, सिलेबस आपने सीखा नहीं है, तो डोंट वरी, ठीक है, टेंशन मत लो उस बात का। Okay, so make a practice of converting a regular paper into an easy question only paper. Very important. इसकी प्रैक्टिस आपको एमकैट में करनी है। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस से बहुत दूर रहना, हाथ भी नहीं लगाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको फिल्टर करने हैं, ये फिल्टर करने का प्रोसेस आपको प्रैक्टिस करना है अगेन एंड अगेन ईच पेपर में। आपका टारगेट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, आपका पहले तो इजी क्वेश्चन पिक करना आपका टारगेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक रेगुलर पेपर को इजी क्वेश्चन ओनली पेपर में कन्वर्ट करने का बढ़िया सा प्रैक्टिस एमकैट में करना। यूटिलाइज द एमकैट वीडियो सॉल्यूशन, अगेन एनालिसिस का पार्ट है ये, आप एमकैट के सॉल्यूशन देखा करो। मेनी स्टूडेंट जो स्मॉल मिस्टेक कि अगर कोई एमकैट का क्वेश्चन है जो आप वो सॉल्व नहीं करते आया, उसका सॉल्यूशन तो आप देख लेते हैं, बट जो क्वेश्चन का आंसर आपका राइट आया उसका सॉल्यूशन आप देखते नहीं हो, ऐसा मत करो।
हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वो राइट आया, माना वो राइट आया, बट हो सकता है हमारे सॉल्यूशन में उसका कोई बढ़िया सा मेथड दिया हो। मतलब जो क्वेश्चन आपने 2 मिनट्स में सॉल्व किया वो हमारे मेथड से शायद 1 मिनट में सॉल्व होता हो, राइट। हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट हो सकता है। इसलिए आपके जो भी आंसर्स करेक्ट आते हैं उसके भी सॉल्यूशन आपको देखने हैं। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर्स, रॉन्ग आंसर, सबके आपको सॉल्यूशन जो देखने हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग आपको जरूर होगा उसमें, ठीक है। एनालाइजिंग द एमकैट्स इज लाइक स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये एमकैट आपको बताता है कि क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, और आपको कहाँ फोकस करना है। आपका एमकैट का स्कोर हम कभी नहीं पूछेंगे, आप खुद देखो कि क्या गलती हो रही है। ये टॉपिक तो मैंने प्रिपेयर किया था, फिर भी इसके ऊपर का क्वेश्चन मैं सॉल्व क्यों नहीं कर पाया, मतलब मुझे वो टॉपिक और भी परफेक्ट करना, राइट। ये आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। जो टॉपिक आपने क्लियर किया है, प्रिपेयर किया है, तो आपको तो उसका आंसर तो आना चाहिए, राइट। अगर नहीं आ रहा है मतलब और कहीं तो कमी रह रही है, आपको वो टॉपिक को और भी क्लियर करना, ठीक है। मिस्ड एमकैट्स विल बी मेड अवेलेबल इन अक्टूबर ओनली। तो देखो, अगर आप अभी कोई एमकैट मिस करते हो तो आपको सीधा फिर अक्टूबर को मिलेगा। तो मैं तो कहता हूँ एक भी एमकैट आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट्स, ये दोनों चीजें के ऊपर आपको फोकस करना है। एंड दीज आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी पैरामीटर्स। एक साइड आप एक्यूरेसी बढ़ाने के चक्कर में ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं, अटेम्प्ट्स को बढ़ाते हो तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। फास्ट करना है, अटेम्प्ट बढ़ाने मतलब फास्ट सॉल्व करना है, और एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो आपको एमकैट में नहीं होने देना। आपको एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट्स दोनों को, चाहे तो दोनों को थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाओ। डिफिकल्ट है माना, थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाओ, बट ये ऊपर जा रहा है ये नीचे, या ये ऊपर जा रहा है ये नीचे, ऐसा नहीं। ये दोनों चीजें आपकी साइमल्टेनियसली ऊपर की जानी चाहिए, एक्यूरेसी एंड। होगा कैसे? अगेन मैं कंसेप्ट के ऊपर, concept understanding and right selection of question can give you both attempts and accuracy। ये दोनों आपको मिल जाएगा अगर अच्छे से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है, एंड आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी बढ़िया है, आप बराबर इजी इजी क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, तो नो वरी, आपके आइटम्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक्यूरेसी, क्योंकि आप सिलेक्ट करते वक्त इजी क्वेश्चन ले रहे हो, इजी क्वेश्चन में एक्यूरेसी तो आराम से आपको मिल ही जाएगी, राइट। Make sure you are exposed to different levels of MCAT so that actual CAT will be just another MCAT for you। MCATs का इतना प्रैक्टिस कर लो कि एक्चुअल कैट में कुछ स्ट्रेस हो ही ना। एक्चुअल कैट में जा रहे हो ऐसा सोचने का ही नहीं, सोचने का कि ये एक अनदर MCAT ही है। इतना आप कंफर्टेबल, आपका माइंड जो है वो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए जब आप MCATs, तो आपको एक्चुअल कैट का कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इजी क्वेश्चन। मैंने बोला था आपको कि मैं इजी क्वेश्चन एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा, एंड ये आ चुका है। इजी क्वेश्चन होता क्या है, वो तो वो पता ही नहीं इजी क्वेश्चन क्या होता है। वो लोगों को लगता है कि इजी क्वेश्चन इज नथिंग बट व्हाट, इजी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, आपको वो इजी लगते हैं। नहीं होता, जो आप सॉल्व कर सकते हो वो इजी क्वेश्चन नहीं कहलाता। जो आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में सॉल्व कर सकते हो वो इजी क्वेश्चन। सॉल्व तो आप बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन भी कर सकते हो, तो क्या वो इजी है? नो। इजी क्वेश्चन की डेफिनेशन समझो गाइस। जो क्वेश्चन मिनिमम टाइम में आप सॉल्व करके दिखा सकते हो वो है आपके लिए इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं, देखते रहना है, ढूंढते रहना है। कैट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। See, और अगर आप ये नहीं कर पाए, फेलिंग टू पिक इजी क्वेश्चंस ऑन द पेपर इज फाइन। फिर क्या, फिर इजी क्वेश्चन तक आप पहुंचे ही नहीं, आपको मिले ही नहीं, तो आप कैट में स्कोर नहीं ला सकते। मैं अगेन एंड अगेन बहुत ज्यादा ये वर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है गाइस। इजी क्वेश्चन जो अच्छे से पिक करते हैं और सॉल्व करके फ्री हो जाते हैं, स्कोर आराम से आता है, ठीक है। See, pick the low hanging fruit first, that is easy question, and do it again and again। आपको एक राउंड नहीं, 2 राउंड, जितने राउंड्स करने पेपर्स के करो। इजी क्वेश्चन सर्च करते रहना, अरे ये इजी है चलो सॉल्व कर दे। एक राउंड में नहीं मिले, वापस सेकंड राउंड में तो मिलेंगे कुछ ना कुछ। जरूरी नहीं कि आपके फर्स्ट राउंड में ही सारे इजी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बट आप जो भी राउंड्स करते हैं ना, मैं टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा कि जो भी पेपर आप एक लुक
कर करके फर्स्ट क्वेश्चन से जा रहे हो एंड तक, हाँ 4-5 इजी मिले, वापस जाओ, वापस फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, अगेन जाओ, कुछ ना कुछ और इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व करके हो गए, अभी मैं बैठा हूँ तो बस कुछ करने के लिए नहीं, इजी तो हो गए सारे, नेवर। सारे इजी इजी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास टाइम बचा है और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक आपके 60 मिनट्स खत्म नहीं होते पर्टिकुलर सेक्शन के, तब तक आपको ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। ठीक है? Ensure you reach the end of the paper and exhaust all the easy questions. मैक्सिमम इजी क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जॉस्ट करना है, right? बाद में फिर रिग्रेट होता है कि अरे यार ये इजी क्वेश्चन था, बट ये डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में मेरा ये इजी क्वेश्चन चुक गया। कभी मत होने, सब कभी मत होने दो। ठीक है, ओके। सो कमिंग सून गाइस, कुछ सेशंस जो है वो आपके लिए हम प्लान कर रहे हैं। क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन वर्कशॉप्स ऑन कमिंग सैटरडेज, जो भी नेक्स्ट सैटरडे होगा तो भी आपको हम 2 सेशंस लेके आ रहे हैं। वर्बल एबिलिटी के ऊपर एक होगा एंड सेलिब्रिटी सेशन होगा, जिसका डिटेल शेड्यूल आपको आने वाले 1-2 दिन में मिल जाए। ठीक है, देन 2 सेक्शंस पर सैटरडे होगा, मतलब ऐसा नहीं आपको अब बोर ना हो, इसलिए हमने थोड़ी वैरायटी रखी है। क्वांट एलआर एलआर दिया है, ऐसे मिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 आवर्स कंटिन्यूस क्वांट रहेगा, 1 आवर में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हम वहाँ पे प्लान करने वाले हैं। प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग व्हाटएवर यू हैव लर्न सो फार टू गेट द बेस्ट फ्रॉम कमिंग वर्कशॉप। जो भी टॉपिक्स आपके हुए हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, जब आप आओगे एडमिशन के लिए तब हम आपको बता ही देंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी कुछ अटेंड किए हैं वो रिवाइज करना शुरू। ठीक है, देन डिटेल शेड्यूल वर्कशॉप्स विल बी कम्युनिकेटेड टू यू शॉर्टली। नाउ ये जो आपका कोर्स है, इसमें से इतने सारे पॉइंट्स जो है गाइस आपको यूज करने, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है इन सारी चीजों को। तो टाइम क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको। सी, आपका जो स्टडी मटेरियल इट इज अराउंड 8000 प्लस पेजेस ऑफ स्टडी मटेरियल। मैंने पहले ही बोला, अगर आपके पास टाइम का स्टडी मटेरियल है, आपको कोई भी मार्केट से बाहर दूसरा कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज मोर देन सफिशिएंट, टाइम का मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट। 400 प्लस आवर्स ऑफ ऑनलाइन या क्लासरूम ट्रेनिंग आपको मिलेगी, 40 प्लस मॉक कैट्स एंड 30 प्लस ऑडिट्स, अदर मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट, डाउट क्लियरिंग एंड पर्सनल काउंसलिंग सेशंस होंगे, रिगरस वर्कशॉप्स टू बूस्ट योर स्कोर। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, हम नेक्स्ट सैटरडे से ही प्लान कर रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं ये सारे वर्कशॉप सेशंस। जीके लेक्चर सीरीज होगा बहुत इंटरेस्टिंग, राइट? डाइवर्स टॉपिक के ऊपर आपका ये जीके लेक्चर का सीरीज आने वाला है। जीडीपीआर वाइड ट्रेनिंग भी हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं, एंड मंथली मैगजीन तो हम आपको दे ही रहे। एडमिशन प्रोसेस गाइडेंस आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, इसके ऊपर इनफैक्ट सेशंस भी रखे हैं कि आप कभी भी आके हमको मिल भी सकते हो और आपके सारे एडमिशन रिलेटेड डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, ओके। सो नाउ नो एक्सक्यूजेस, राइट? आई नो ये कोविड-19 का सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा नेगेटिविटी दिमाग में आ जाती है कि मुझे नहीं पढ़ना है ये ऑनलाइन एंड ऑफ। जब मैं क्लासरूम कोचिंग शुरू होगा तब मैं मेरा प्रिपरेशन शुरू करूंगा, या मेरा स्क्रीन के सामने सर दुखता है, या मेरा नेट ही नहीं चल रहा है तो मैं कैसे क्या पढ़ पाऊंगा, मैं मेरे फ्रेंड से नहीं मिल पा रहा हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, मेरा तो ग्रुप स्टडी होता है, अकेले में मेरा पढ़ाई नहीं होता। ये सारे एक्सक्यूजेस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, इसको माना ही चाहिए, राइट? यू हैव टू बी एडेप्टेबल। अगर आप एडेप्ट नहीं करोगे नई नई चीजें, तो फिर कंपटीशन में टिक नहीं, राइट? बिकॉज वी आर नॉट, एजुकेशन इंडस्ट्री इज नॉट दी अलोन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस कोविड-19, राइट? एवरीबडी इज सफरिंग एंड सब लोग कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। यस, हम क्लासरूम कोचिंग जरूर जरूर शुरू करेंगे, जैसे ही ये कोविड का इशू जो है वो सॉल्व हो जाता है तो हम शुरू करेंगे। बट तब तक मैं नहीं, ये नहीं चाहता कि तब तक आप बैठे रहो और फिर जब हम क्लासरूम में मिलेंगे, एक साथ सब रहेंगे क्लासरूम में, तब आप मुझसे डाउट्स पूछोगे, या तब तब आप आपका प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट करोगे। इतना वेट मत करो गाइस, राइट? आपका प्रिपरेशन अभी से शुरू, ओके?
सी यू कैन हैव द रिजल्ट्स और एक्सक्यूजेस, नॉट बोथ, दोनों चीजें नहीं। एक्सक्यूजेस दोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट चाहिए तो एक्सक्यूजेस को खाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये एक्सक्यूजेस, see you can eliminate all these excuses with your willpower, okay, and your discipline. आपके विल पावर एंड डिसिप्लिन हो आप, ये एक्सक्यूजेस कुछ नहीं, ये चले जाएंगे। दिस एक्सक्यूजेस आर जस्ट फैब्रिकेटेड बाय यू। तो ये बनाना भी आपको अच्छे से आ सकता है अगर आप एक डिसिप्लिन एंड एक अच्छे से विल पावर दिमाग में रखते हो तो, ठीक है। सो एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं देने हैं, आज से स्टडी करना है अच्छे से, ठीक है। ओके, सो फ्रेश बैच वी आर स्टार्टिंग कैट 2019 जून को, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। मंडे टू फ्राइडे होगा 9:30 AM, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज कॉन्टैक्ट अस। उसके दो स्लॉट्स होंगे 9:30 AM और 6 PM, दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कैट 2021 का भी हम 26 जून से एक बैच शुरू कर रहे हैं, ट्यूसडे थर्सडे रहेगा। इसमें भी हमने दो ऑप्शंस रखे हैं, 9:30 एंड 6:30। सी ये जो भी बैचेस मैंने आपको अभी बताए, ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग लॉकडाउन रहेंगे और उसके बाद हम क्लासरूम कोचिंग रिज्यूम कर देंगे, ठीक है ना। स्टडी प्लान रिलेटेड जो भी डाउट्स है प्लीज आप मुझे अभी पूछ सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स। गुड इवनिंग महेश। Are there possibilities for the exam to be postponed, sir? Yes, seriously, Lavina, we don't have any idea about that, but don't think about that. ऐसा मान के ही हम चलेंगे कि कैट नवंबर में ही होगा और 10 से लेके 4 to 5 मंथ्स हमारा प्लान होना चाहिए। पोस्टपोन हुआ तो बढ़िया, डोंट वरी, हमको ज्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। बट हम तो अभी फिलहाल यही प्लानिंग से आपको आगे बढ़ाएंगे कि आपका एग्जाम जो है वो सैटरडे नवंबर में होगा, ठीक है। How much time to study daily for 5 months? Sahil is asking the question. Sahil, 6, मैं minimum 6 hours की बात कर रहा हूँ. See, there are so many students who are preparing for CAT. Working professionals हैं जो अभी work from home कर रहे हैं, वो अगर आप 3 to 5 hours भी कर लेते हो, more than enough for them. अगर आप जॉब नहीं कर रहे, आपका एजुकेशन हो चुका है, तो आप मैक्सिमम आवर्स दे सकते हो, 6 to 8 hours आप पढ़ सकते हो। सो मैं मिनिमम की बात करूँ तो 6 hours होने चाहिए, right? Are there possibilities for the exam to be postponed? I already answered this question. Vidhi is asking, I'm not able to understand how to start studying, sir. Can you please tell me how to start? Yes, let's start. We are starting it from today, right? Vidhi, जब भी आप ऑनलाइन हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए? आपने सपोज आज फर्स्ट टॉपिक अटेंड किया, राइट? एग्जांपल लेते हैं, सिंपल इक्वेशन, ठीक है। आपका ये फर्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, आपने ऑनलाइन सेशन देखा उसका, ठीक है। ऑनलाइन सेशन देखने के बाद आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, आपको हम बुक्स प्रोवाइड करते हैं, उसका थियरी ठीक से रीड करना है, राइट। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करने हैं, सेक्शनल टेस्ट देनी है। ये सब करने के बाद आपका वो टॉपिक क्लियर, ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ा। अभी से डायरेक्टली कैट 90 का पेपर ले लिया और वो सॉल्व करने के लिए ले लिया, नहीं, वो तो आपको डर देगा, राइट। सो वन टॉपिक करो, उसको परफेक्ट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस होना चाहिए। कभी भी जंप नहीं करना कि सिंपल इक्वेशन पढ़ा ही नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा ही नहीं, गए डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, कैसे कैसे समझ में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। Selective study take this point again. Sarthak is asking. Okay, selective study means what, guys? अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप नहीं करना चाहते हैं तो मत करो, बट simultaneously you have to be focused in all the remaining topics. आपको बाकी के टॉपिक्स में परफेक्ट होना पड़ेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
what are the books to study for quant? टाइम मटेरियल इज इनफ, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स दिए जाएंगे। क्वांट में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बुक्स दिए जाएंगे, आपके एडवांस के अलग हो गए, बेसिक के अलग हो गए, तो नो अदर बुक इज रिक्वायर्ड। कैट का टाइम क्वांट बुक इज मोर देन सफिशिएंट, राइट, टाइम का, ठीक है। Good evening, sir. Yamini, I'm Yamini. Can we practice QA from NCRT maths textbooks? Yes, you can practice, but if you're weak in maths, means बहुत सालों से आपने maths देखा ही नहीं है, then you can do this. Basics clear करने के लिए you can follow this practice, Yamini. Okay. Tushar, you are asking what should be the exact process to have any topics to be done, right? मैंने अभी भी बताया आपको एक procedure follow करनी है, पहले online sessions, then SM books में भी theory, exercise A, exercise B, then sectional test. This should be the complete process. Okay, please get follow that. Lokesh, I joined the online coaching, but still I haven't found a way to ask doubt to the faculty. Lokesh, please check your mail. Uh, हर एक बैच को एक मेंटर अपॉइंट किया गया है, आप उस मेंटर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आपको उसके डिटेल्स दिए गए होंगे, फैकल्टीज के साथ आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा कोई मेल नहीं आया है, प्लीज कॉल अस, we'll definitely give you the details of the faculties. Okay. Sir, whether the online screen of both MCAT and CAT are same? Sardar is asking. Yes, हमने हमारा जो मॉड्यूल जो है, ऑनलाइन मॉड्यूल जो है, वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि इट इज ऑलमोस्ट सेम। आपको कलर्स भी सेम देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट फॉन्ट भी हमने सेम रखने की कोशिश की है, सो दैट आपको एक्चुअल कैट में जब जाओगे तो कुछ नया नहीं दिखना चाहिए। तो सरदार, आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सर, ऑनलाइन में स्टडी बहुत नहीं होता है, वो नो एक्सपीरियंस। ऑनलाइन में होता है, करना पड़ेगा, करो। सी, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, जाएगा डिफिकल्ट, क्योंकि हमको ऑफलाइन की ज्यादा आदत है, बट अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट है तो हम अवेलेबल है ही आपके लिए। Parth, daily practice means writing all the formulas in the book and revise. Yes, exactly, exactly. You're right. Some questions of each section. Yes, Parth, you're right. What we have to do of the cue cards of vocabulary, Roshni, you will get the answer in coming Saturday, because verbal के ऊपर so many doubts are there, so definitely you will get the answer by the our expert English faculty. So don't worry, आपके VA and RC related जो भी doubts अभी आ रहे हैं, don't worry, next Saturday को सब clear हो जाएगा आपका। How to start uninterested topics of like RC, again you will get the answer parts next Saturday। RC बोरिंग नहीं है, RC इंटरेस्टिंग है, राइट। डोंट वरी, आरसी के ऊपर भी आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे पैसेजेस को डील करना है, यू गेट ऑल दी। Yamini, again one question. In spite of doing problems from time material, I am unable to get solution. Should I practice them again and again? Yes, Yamini, you are right. Again and again आपको वो प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में परफेक्ट नहीं होते, नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जाना है।
how far we predict the level of difficulty level of CAT 20? Can't say about that. हमको तो वर्स्ट डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर के लिए प्रिपेयर रहना है अभी तक. ऋषिकेश, मैथ सेक्शन इज गोइंग हार्ड टू यू. ओके, डोंट वरी. जैसे कि अभी मैंने वन स्टूडेंट को बताया, आप एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ सकते हो, राइट? वैसे तो जरूरत नहीं है गाइस, बिकॉज एवरी टॉपिक में हमने थियोरेटिकल पार्ट जो है वो अभी बढ़ाया है. सो आई होप आपको वो थियोरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा. स्टिल अगर आपको थोड़ा सा स्कूल लेवल मैथ्स रिवाइज करना है तो वो आप मैथ्स के बुक्स जो है एनसीईआरटी के फॉलो कर सकते हो. BARC, yes, Sankit, you will get the answer coming Saturday. So 6 hours preparation is other than 2 hours course? Yes, yes, right. 6 hours is other than the online course. Okay. Devyani, should I give sectional test after I finish the topic or in October, November? No, Devyani, October, November का wait नहीं करना है. Immediately after finishing that topic, you should start giving sectional tests and also analyze them very carefully. Which topics of quant will be taken in this coming workshop session? Okay, it will be on simple equations, ratio proportion, percentages. Okay, guys, we are having some time constraint. So your questions will be with us. We'll try to answer those questions later. Okay, so that's it. Thank you for attending this webinar. Stay safe. Thank you so much and all the best.